Good afternoon, students. Today our class is devoted about economical and social aspects of advertising. Up till now, we all people are able to understand the role, the significance, the importance of advertising. How much advertising is played a greater role towards the society, towards the consumer, towards the manufacturer, towards the salesman. But after all, many academicians, experts, are not full-heartedly accept the significance, importance of the advertising. They have arised many doubts, criticisms, demerits of advertising. It is also known among us nothing is perfect. Each and every things persons have the combination of merits and demerits. Just like that, here also it is explored by the experts of marketing management that there are some defects, demerits part of advertising. And under the three headings, critics are arise the doubts, questions about advertising, that is economical, second is social, and last one, third is ethical aspects. By the economical aspects, critics said that first is that it cannot create new demand. Second is that wastage of resources. Third is that arise cost of the product. Last one, this is much more important, that it is said by critics that there is the monopoly of advertisement. Encourage monopoly. So all there are the 4 points which are highlighted by the experts of marketing against the advertising. First is that advertising does not create new demand. It is said
how it is said that advertising is related to the economical part? Not, this is not the economical part. Only advertising has the task to communicate consumer, inform consumer, remind consumer, influence consumer to purchase the product. So this is not the creation of demand. Suppose if it is not needful for the consumer, by the ad, consumer cannot purchase the product after watching the ad, cannot influence by the advertising. So it is claimed by the experts that it cannot create new demand. Second is that waste of resources. What is happened? A lot of expenditure are sponsored by the company on the ad to attract consumer, to catch the eye of consumer, to seize the emotion of the consumer to purchase the product. But here one thing is important. Experts claim that whatever a large amount is spent to create the glamour by the advertising, so why not such amount can be spent to maintain the quality of the product, to reduce the price, offer gift, so that consumer can turn to purchase my product. So this is the second point, that this is the wastage of the resources. Second is that arise cost of the product. This is the funda of the business management. Cost is not compensated by the pocket of the businessman. Directly or indirectly, cost can be managed, compensated by the pocket of the consumer. So lastly, what is happened? Consumers have to pay a higher price instead of watching the glamorous advertising. So this is the minus point. Last point, what has happened? Experts said that advertising encourage monopoly. Suppose a company who is much more financially sound and they have more capacity to spend on advertising, and another company who has not much more amount to spend on the advertising. So number two company only maintain the quality of the product, genuine price of the product, but fail to pay on the advertising. So what will be happened? Company one will create the glamour, will create the monopoly, and people are bound to purchase lower quality of good by paying higher price. So all these are the minus point of the advertising by the economical point of view, because it is said in economics that we have to get maximum by the engagement of minimum requirements. But what has happened here? We overlook quality, we overlook the genuine price, and only focus to turn the mind of the consumer to purchase my product. So all these are the demerit parts which are arised by the experts. Try to understand in Hindi what is happened. Today we are going to discuss about economical and social aspects of advertising. And what is happened? Economical and social aspect of advertising, इसका यह अर्थ है कि विभिन्न विद्वानों ने एडवर्टाइजिंग को बहुत प्रसन्नता से इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको नहीं सराहा है.
जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपूर्ण है। सभी गुणों का समन्वय उसके व्यक्तित्व में, उसके अंतर्निहित में नहीं हो सकता है। वैसे ही विद्वानों का मत है कि एडवर्टीजमेंट भी पूरे का पूरा फेवरेबल सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है। और इसके क्रिटिक्स को, इसके अवगुण को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला इकोनॉमिकल, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा एथिकल, नीतिगत भी एडवर्टाइजिंग नहीं है। तो पहला हेडिंग हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के द्वारा, और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इट कैन नॉट क्रिएट न्यू डिमांड। एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस का कहना है कि एडवर्टाइजिंग क्या है? केवल एक इंफॉर्मेशन का साधन है, सब जगह अपनी बात को पहुंचाता है, अपनी बात को रखता है, लेकिन कोई इसके कारण नया डिमांड प्रस्तुत हो जाए और उसके कारण हमारा जीडीपी बढ़ जाए, लोगों का रहन सहन बढ़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब तक नीड किसी भी वस्तु की किसी की नहीं होगी, उस वस्तु को वह कोई नहीं खरीदेगा। पहला नीड, और उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, उसको बार बार याद दिलाने का काम करता है, एजुकेट करने का काम करता है। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि कंज्यूमर केवल एडवर्टीजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए द्रुत गति से आ जाएगा और आंख मूंद के एडवर्टीजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द सोशल एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड इट कैन नॉट क्रिएट डिमांड। सेकेंड ऑब्जेक्शन है कि एडवर्टीजमेंट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और जहाँ तक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है, यहाँ भी सब लोगों का कहना है कि एडवर्टीजमेंट में जो ग्लैमर क्रिएट करते हैं, तमाम तरह के सेलिब्रिटी को कॉल करते हैं, तरह तरह का क्रिएटिविटी दिखाते हैं और ग्लैमरस बनाते हैं किसी भी तरह कि उसकी नज़र हमारे ऐड के ऊपर ठहरे, हमारे बारे में सोचे, और उसमें हम ग्लैमर में कहीं से कहीं भटक जाते हैं। इसका खुद कंपनी को भी एहसास नहीं है, करने वाले को एहसास नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उस समय बाद में हम लोगों को पता चलता है कि इसके ऊपर कितना नाजायज अपव्यय हुआ है। सिंपल इंफॉर्मेशन के द्वारा भी जानकारी हो जाती है, लेकिन इस पर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग ए ह्यूज अमाउंट उस पर खर्च कर देते हैं अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। उसका भी एक कारण है, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ह्यूज अमाउंट क्यों खर्च करते हैं? कॉम्पिटिटिव एज है, हम अगर ऐड दे रहे हैं, सब लोग ऐड दे रहे हैं, तो हमारा ऐड कितना यूनिक है, इस यूनिक को सुपर बनाने के चक्कर में हम लोग मैक्सिमम खर्च कर देते हैं। और जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि सही प्रोडक्ट उसको दें, सही प्राइस पर दें, सही प्रोडक्ट का सप्लाई है, वो इग्नोर हो जाता है। और इकोनॉमिक्स हमको क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पर इन लोगों का, विद्वानों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, एकेडमिशियंस का कहना है कि यह जो हम खर्च इस पर नाजायज़ करते हैं, उस खर्च को क्यों ना हम लोग कन्वर्ट कर दें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, गिफ्ट हैम्पर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग के पास जो प्रोडक्ट अगर बनाने में 5 रुपए की बात आती है, तो 6 रुपये 7 रुपये में उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग सेल करते हैं, और एडवर्टीजमेंट पर जो खर्च है उसको 7 और 8 रुपये हम लोग उसी के साथ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर 7 रुपये में खरीदता, वह 10-15 रुपये में खरीदेगा। और वह पॉकेट किसका खराब हो रहा है, किसका पॉकेट डाउन हो रहा है? तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या हुआ कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है। सो दिस इज द डिमेरिट पॉइंट्स। लास्ट वन इज दैट इनकरेज मोनोपोली। सपोज कीजिए कि एक कंपनी, नंबर 1 कंपनी 1 और कंपनी 2, 2 एग्जाम्पल हम लोग ले लें। कंपनी नंबर 1 जिसके पास बहुत इकोनॉमिकली बेटर हैं, वेल ऑफ हैं, और मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, और प्रोडक्ट उनका इग्नोर्ड है, सप्लाई इग्नोर्ड है, लेकिन एडवर्टीजमेंट के कारण कोने कोने में जगह जगह
अपने प्रोडक्ट की उन्होंने पहचान बना रखी है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है, तो लोग उसके बारे में अवेयर हो चुके हैं और लोग प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हैं। लेकिन सेकंड हमारे पास जो नंबर 2 कंपनी है वह प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना रही है, उसका प्राइस भी जेन्युइन है, सप्लाई भी है, लेकिन वह उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च करे। तो क्या है, अच्छे प्रोडक्ट रहने के बावजूद भी न कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ले पा रहे हैं, न वह कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे पा रहा है। रीज़न क्या है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कंपनी नंबर 1, वह कंज्यूमर को हाईजैक कर ले रहा है। तो यह भी इसका डिमेरिट पार्ट है कि जेन्युइन लोग, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर के कंज्यूमर के सामने आने में पिछड़ जाते हैं। सो ऑल दीज आर द डिमेरिट्स, ऑब्जेक्शंस बाय द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। लेकिन अगर इसके सेकेंड चीज़ का अगर हम लोग क्रिटिकली इवेलुएट करें, इसके मेरिट को भी देखें, डिमेरिट को भी देखें, तो हमारे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि डिमेरिट इसका है, लेकिन इस डिमेरिट को अगर हम लोग मिनिमाइज कर दें, डिमेरिट को मिनिमाइज करने में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नाजायज इन्वेस्टमेंट नहीं हो इसके ऊपर, लेकिन एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने के लिए कम से कम क्रिएटिविटी दे करके हम इंफॉर्मेशन दें तो हमारे पास वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। क्योंकि आज के डेट में एक जनरल इवैल्यूएशन हो, मेरिट डिमेरिट दोनों एनालिसिस हो, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसके डिमेरिट को मिनिमाइज कर दें और इसके मेरिट को हाईलाइट करें तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट के कारण हम लोग के पास बेनिफिट आएगा। क्योंकि वह हमारे पास इसका तो क्राइटेरिया है ही ना कि वह प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, जिसके बारे में किसी की जानकारी, किसी को जानकारी नहीं होती है, उसके बारे वह ऐड के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इससे हमारे पास क्या है, इसके पास बेनिफिट आ रहा है। तो हम लोग इसके अवगुण को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने का अर्थ है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करें, जेन्युइन इस पर खर्च करें, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी इसके कारण मिले। तो इसके मेरिट को हम लोग हाईलाइट करके हम लोग इसकी कमी को दूर कर सकते हैं और हम लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हंस बने, इसका जो मेरिट पार्ट है उसको सक करें एंड डिमेरिट पार्ट को वहीं पे रिमेन करें। And it is the golden opportunity for the manufacturers, for the business organization to come over the demerits of the advertising and take benefit of the advertising to make huge profit in the business organization. So next class I will continue about the social aspect and ethical aspects, how there are the objections by the experts and how manufacturers, corporate house can come over the objections of the social and ethical part and how it will take the benefits. Thank you very much. That's all for today. See you in the next class.